Let's begin with galvanometer. It is used to detect weak electric currents in the circuit, that is small electric currents in the circuit. Coming to the construction, it has a rectangular coil suspended between concave north and south pole facing each other. So, it is known as concave pole faces, and these two poles are of a हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट. घोड़े का नाल देखा होगा ना, घोड़े के नाल के शेप का ये मैग्नेट है, इसलिए इसको हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट बोलते हैं. And it is laminated. Now to this rectangular coil a pointer is attached. When the electric current flows through the coil deflects, and that deflection is noted by this pointer. If the current in the coil is more, the deflection will be more, and the pointer will show the more number of readings. Okay, if the current in the circuit or in the coil is low, the deflection in the coil will be low and the pointer will show less reading. So, the amount of current flowing through the rectangular coil can be read or can be calculated using the pointer, and that pointer points on the angular scale which has a readings, and so we can note down that reading, and that reading will give us the amount of current flowing through the rectangular coil. So, this was all about construction. Okay, before going to next part, something is left. See, galvanometer can also use to measure potential difference. I have told this, right? Current is directly proportional to deflection. If there is more amount of current, the deflection will be more. Both of them are directly proportional. If the current in the circuit is low, the deflection will be low. Both of them are directly proportional. And the current in the coil can be noted down with the help of the pointer, because the pointer is attached to the coil. Coil deflects, the pointer moves, and that is the reading of the current in the coil. Pointer moves, and the pointer, whatever number the pointer will be pointing, that will be the value of the current in the coil. Okay, that was the basic thing. Galvanometer can also be used to measure potential difference. We have seen that galvanometer is used to detect weak electric currents. Of course, if it is detecting, it will also be used to, or it can also be used to measure weak electric currents. So, it can be used as an ammeter, and it can also be used to measure potential difference, which is the work of the voltmeter. So, galvanometer can also be used as voltmeter, right? Galvanometer can be used to detect, और galvanometer is used to detect weak electric current. जब ये weak electric current detect करता है तो ये small electric current measure भी कर सकता होगा. current measure कौन करता है? ammeter. तो galvanometer के construction में थोड़े से changes करके मैं galvanometer को use कर सकती हूँ small current measure करने में. coming to voltmeter, galvanometer potential difference भी measure करता है, but ये potential difference measure करने का काम किसका है? voltmeter. So I can use galvanometer as voltmeter by making some changes in the construction of the galvanometer. ठीक है, वो बाद में देखेंगे. Before that, let's come to some of the qualities of galvanometer. You might have heard this word as moderate, scanty, heavy. So, moderate is the medium. Okay, galvanometer has medium resistance of about 100 ohm. 100 ohm का resistance galvanometer के पास है, मतलब वो stop करने वाली capacity. And galvanometer has a small current carrying capacity of about 1 milliampere. अब इसके करंट को रोकने वाली जो क्वांटिटी है वो 100 ओम है, इतनी बड़ी 100 ओम, वो बड़ी है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर से करंट जो जाएगा वो थोड़ा सा ही जा पाएगा, क्योंकि रोकने वाला जो है रेजिस्टेंस इट इज़ हाई 100 ओम, तो करंट छोटा सा ही फ्लो हो पाएगा. अगर छोटा सा करंट फ्लो हो रहा है तो छोटा करंट ही मेजर कर पाएगा, और वो कितना करंट मेजर कर पाता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 मिली एम्पियर में करंट्स वो मेजर कर सकता है. ठीक है, चलो लेट्स यूज galvanometer as an ammeter. If I want to use galvanometer as an ammeter, I'll have to do some changes in the construction of the galvanometer, or I'll have to keep some points in my mind to while converting galvanometer into ammeter. Let's see those points. Now G is the resistance of the moving coil galvanometer. Yes. Is the full scale deflection given by moving coil galvanometer. When the maximum amount of current flows in the moving coil galvanometer, the pointer shows full deflection. Here the pointer will show full deflection, maximum deflection. इससे ज़्यादा और deflection दे ही नहीं सकता, मतलब वहाँ पर क्या हुआ है? maximum current flow हुआ है. So that time the current is Is. Whatever current which gave full scale deflection in the moving coil galvanometer, that current is Is. Okay. अब यहाँ पर moving coil galvanometer is current sensitive.
ठीक है, करंट सेंसिटिव और बहुत नाजुक भी होता है ये। अगर ज़्यादा करंट मैं पास कर दूँ यहाँ पर मैं कॉइल में से, तो कॉइल ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा और कॉइल टूट जाएगा, पॉइंटर यहाँ आके रुक जाएगा, ख़त्म, ख़राब हो गया, एंड इट इज़ कॉस्टली। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हमको बचाना भी पड़ेगा, ज़्यादा करंट हम इसमें से पास नहीं कर सकते। ये जो कॉइल है इसमें से अगर ज़्यादा करंट पास हो गया, हाई वैल्यू का करंट पास हो जाता है, तो क्या होगा, कॉइल में से जितना करंट पास होगा उतना वो डिफ्लेक्ट होगा। ज़्यादा करंट है तो कॉइल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा, एंड दिस कॉइल विल ब्रेक एंड द पॉइंटर विल कम ओवर हियर एंड स्टॉप. So to protect it from damaging, we will do something. What we will do, I'll tell you that afterwards. Now before that, galvanometer is always connected in series with the resistance box. ओके ना, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में गैल्वेनोमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं जब गैल्वेनोमीटर को एम मीटर जैसा यूज़ करना है। अब जब मैंने ये रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज़ में कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर हैज़ रेजिस्टेंस 100 ओम, वी हैव सीन दैट अबाउट 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाला है सपोज इट इज़ 50 ओम, तो टोटल ये सीरीज़ में लगाने से क्या हो गया, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, कितना हो गया 150 ओम, रेजिस्टेंस एकदम स्ट्रांग हो गया, मोटी दीवार बन गई। तो अगर मुझे 200 मिली एम्पियर का करंट भेजना हो तो क्या मैं भेज पाऊंगी वहाँ से, चलो 200 एम्पियर ले लेते हैं, या 200 एम्पियर का करंट मुझे वहाँ से भेजना हो, विल आई बी एबल टू सेंड, नो, बिकॉज दीवार मोटी, रेजिस्टेंस मोटा, करंट छोटा सा करंट जा पाएगा, मोटी दीवार है ना तो एकदम छोटा सा 200 एम्पियर करंट के बदले एकदम छोटा सा करंट जा पाएगा। तो यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर में से तो ज़्यादा करंट जाना चाहिए ना, वॉट एवर अमाउंट ऑफ करंट आई वॉन्ट टू सेंड, that whole amount of current should flow, then only I'll come to know कि सर्किट में करंट कितना है। गैल्वेनोमीटर को तो हम अभी एमीटर जैसा यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब जितना भी करंट मैं भेजूँ उतना पूरा करंट मेरा गैल्वेनोमीटर मेजर करके मुझे आउटपुट दे दे, बट हियर इट इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ से आउटपुट कितना आ रहा है, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस 150 ओम का हो गया, भेजा मैंने 200 एम्पियर, यहाँ मुझे मिल रहा है 10 मिली एम्पियर, कितना कम है, 200 एम्पियर भेजा, मिल रहा है 10 मिली एम्पियर, बहुत कम है। चलो 10 मिली एम्पियर हटा के 10 एम्पियर, इट विल बी ईजी फॉर यू। 200 एम्पियर भेजा, लेकिन मोटी दीवार की वजह से सिर्फ आउटपुट कितना आ पाया, 10 एम्पियर, सो दिस वॉन्ट डू। सो फर्स्ट थिंग which I should keep in mind while converting galvanometer into an ammeter is that effective resistance कम होना चाहिए। effective resistance, ये जो मोटी दीवार है ये पतली होगी, effective resistance कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो कर पाएगा, जितना करंट मुझे भेजना है एक डिज़ायर्ड वैल्यू, हाई वैल्यू का करंट मैं यहाँ से भेज पाऊँगी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दैट आइडियली एमीटर शुड हैव ज़ीरो रेजिस्टेंस, आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, कोई दीवार ही नहीं होना चाहिए, तो जितना करंट मैं भेज रही हूँ पूरा उतना करंट चले जाए और मुझे सर्किट में कितना करंट है वो मेजर करने मिल जाएगा यूजिंग एमीटर। जितना करंट है वो पूरा अगर एमीटर में से फ्लो हो जाएगा तो एमीटर विल गिव मी द प्रॉपर रिजल्ट, but in practice this is not possible because every device, every object has some or the other resistance, so this cannot be designed ammeter having zero resistance. Okay, now here the third point is about, first point was about effective current का desired value, वो सब whatever I have explained, current का value should be increased and whatever I have explained that is written over here. Okay, now coming to गेटिंग डैमेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अगर करंट ज़्यादा भेज दिया कॉइल फास्ट मूव होगा, कॉइल ब्रेक हो जाएगा, पॉइंटर यहाँ के रुक जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन देके। तो टू प्रोटेक्ट इट व्हाट साइंटिस्ट हैव डन, they have connected a low value resistance in parallel to the galvanometer and that low value resistance is known as shunt। ठीक है, और शंट रेजिस्टेंस, इससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस जो दीवार है वो पतली हो गई तो करंट ज़्यादा फ्लो हो पाएगा और हमको वो प्रॉपर एमीटर जैसे काम करके देगा, जो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा हमारे एमीटर में से उतना प्रॉपर वैल्यू हमको मिलेगा, राइट, आउटपुट एमीटर प्रॉपर देगा। एमीटर इज़ यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट, तो अगर एमीटर में से करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है तो आउटपुट कैसे प्रॉपर देगा एमीटर, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए, तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमको कम करना है। हाउ आई विल डू दैट, by connecting a low resistance in parallel to the galvanometer known as shunt resistance and that will also protect my galvanometer from getting damage। कैसे प्रोटेक्ट करेगा शंट,
अब देखो वो बाद में बताती हूँ, पहले बताती हूँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कैसे होता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज 100 ओम, शंट का रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम, लो वैल्यू रेजिस्टेंस है ना। अब पैरेलल में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/RP, 1/100 प्लस 1/10, दिस कैन बी रिटन एज 10 प्लस 100/100 इंटू 10 इज 1000, this is your 1/RP. So effective resistance in this parallel circuit, effective resistance will be, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, 1000/110, ये कैंसिल हो गया, 11 1 ज़ा 11 9 ज़ा 99, 1 रिमेन्स, पॉइंट लगा दो, 10 हो जाएगा, अगेन इट इज़ स्मॉलर देन 11, सो 11 0 ज़ा 0, नाउ इट बिकम्स 100। ये देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 100, और ये पूरे सर्किट में अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 9.09, ये पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना कम हो गया बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ 10 ओम, और या लो वैल्यू रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने से गैल्वेनोमीटर की जो दीवार थी रेजिस्टेंस की 100 ओम की, वो 9 ओम की हो गई, एकदम छोटी सी हो गई। तो अब प्रॉपर जितना वैल्यू ऑफ करंट जितना सर्किट में करंट है वो प्रॉपरली फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर में से, और हमको वैल्यू मिलेगी, हमको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा कि भाई सर्किट में करंट कितना है। अब शंट का काम क्या है, अब यहाँ पर से सपोज आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, गैल्वेनोमीटर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा गैल्वेनोमीटर कैन नॉट टेक द करंट। देखो यहाँ पर हमने बताया गैल्वेनोमीटर हैज़ स्मॉल करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1 मिली एम्पियर, कुछ मिली एम्पियर्स में ही वो करंट ले सकता है। तो यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ करंट विल गो टूवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर, let's say Ig is the current flowing through the galvanometer, and the remaining amount of current, अगर I में से Ig यहाँ चला गया तो whatever remaining that is I minus Ig, जितना बचा वो शंट से जाएगा। अब ज़्यादा गैल्वेनोमीटर से जाएगा या ज़्यादा शंट से जाएगा, अब अलग अलग देखो, ठीक है। पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो कम हो गया, मीन्स इट कैन वर्क एज एन एमीटर नाउ। दूसरी चीज़, अब सेपरेटली देखो ज़्यादा करंट किस में से जाएगा, गैल्वेनोमीटर का सेपरेट रेजिस्टेंस देखो तो 100 ओम का है, तो यहाँ से, और इसकी मोटी दीवार है एज़ कम्पेयर टू द दीवार मेड बाय द शंट के पास 10 ओम है तो पतली दीवार, तो ज़्यादा करंट किस में से पास हो पाएगा, शंट में से, और गैल्वेनोमीटर में से कमती करंट जाएगा, उससे गैल्वेनोमीटर ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि कमती करंट जा रहा है, उसकी दीवार मोटी है, उसका रेजिस्टेंस मोटा है, और अपने शंट के पास से ज़्यादा करंट जा रहा है क्योंकि शंट की दीवार पतली है। इस तरीके से ये दोनों करंट यहाँ पर आके मिलते हैं और यहाँ पर मुझे प्रॉपर आई आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। चलो, होप यू अंडरस्टूड दिस। अब प्रॉपर आउटपुट कैसे मिलेगा, यहाँ देखो इस पॉइंट पे देर आर 2 करंट्स कमिंग इनसाइड, विच 2 करंट्स आर कमिंग इनसाइड, IG प्लस I माइनस IG, so what will be the output, IG और IG gets cancelled, I will be the output, input I था, output I आया। wow, what a great ammeter, what a perfect ammeter we have built. So this is how shunt protects galvanometer, and shunt also helps to reduce the effective resistance of the galvanometer. कैसे, by connecting shunt in parallel to the galvanometer. Hope you understood this. Okay, now what does the shunts do? Shunt increases the range of the ammeter. Increases the range of the ammeter मतलब यहाँ पर by connecting shunt we can increase ये ammeter का maximum current डिटेक्ट या मैक्सिमम करंट मेजर करने का जो रेंज है वो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। शंट लगाने से पहले कितना, हम देखो पहले हम लोग शंट नहीं लगाते तो 200 एम्पियर का करंट भेज रहे थे, लेकिन कितना मेजर कर पा रहे थे, सिर्फ 10 एम्पियर का करंट, कितना छोटा रेंज का एमीटर बन रहा था। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग ने शंट लगा दिया तो यहाँ पर मैंने 200 एम्पियर का करंट भेजा, पूरा आउटपुट में मुझे 200 एम्पियर मिला, इसका रेंज बढ़ गया अपने एमीटर का, तो शंट की वजह से बढ़ा। ओके, डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस, ये तो मैंने बताया, जिस भी पॉइंट के अक्रॉस हम शंट लगा दो वहाँ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस एरिया का इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो हमने कम कर दिया। गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस कितना था, 100 ओम, शंट लगाने से 9 पे चले गए डायरेक्ट, कितना कम हो गया। सो दैट इज़ ऑल्सो यूज़ ऑफ शंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू सम कैलकुलेशन पार्ट, see here what I have written, shunt protects the device from getting damaged, whatever I have told in Hindi same thing is written over here. Now when
Yeah, this I have told. Ig is the current flowing through the galvanometer, and whatever amount of current will be coming towards shunt will be I minus Ig. Okay, now what will be the current through the shunt? What will be the current through shunt? I told it. Let it be as Is, that will be I minus Ig. ठीक है, जो करंट शंट के पास आ रहा है उसका हम नाम बोलते हैं वो आई एस है, लेकिन उसकी प्रॉपर वैल्यू विल बी आई माइनस आई जी. आई में से आई जी तो यहाँ चला गया, सो आई माइनस आई जी जो भी बचा वो यहाँ पर आएगा शंट के पास. अगर किरचॉफ्स लॉ लगा के देखना चाहते हो तो इवन यू कैन अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. सी एट दिस पॉइंट there is only one current coming, so I equal to, and two current leaving the junctions, that is Ig plus next one मुझे नहीं पता, this one is question mark. So what will be question mark? Question mark will be I minus Ig, means the current flowing towards the shunt will be I minus Ig, and let it be called as Is. ठीक है, चलो ये हो गया. Now as both of them are connected in parallel, what will be the potential drop or potential difference? Okay, what will be the potential difference across these two? जब दो कंपोनेंट्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और जब दो कंपोनेंट्स सीरीज में लगते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है. बट यहाँ दोनों पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस shunt resistance. What is potential difference? Current into resistance. Current flowing through the galvanometer is Ig, and current resistance of the galvanometer is G. Current flowing towards shunt is Is, and the resistance, shunt resistance is S. हाँ, कितना easy था, है ना? अच्छा, okay. Now the next part is Igg is equal to, what is the value of Is? Is is I minus Ig, I minus Ig and S. So S is equal to Igg upon I minus Ig. I can write it like this. So what is this? The value of the shunt resistance. With the help of this equation, you can decide the value of the shunt resistance. And by deciding the value of the shunt resistance, what you can do? You can increase the range of the ammeter. Okay, or you can what is this ammeter? This ammeter made using galvanometer. You can increase the range of the ammeter made using moving coil galvanometer. ठीक है. If I is equal to n times into Ig, अगर I का वैल्यू है n times Ig, then what will happen? चलो इस फॉर्मूले में लगा के देखो. S is equal to Igg, I is n times Ig minus Ig. So let Igg in numerator be same. यहाँ से Ig कॉमन निकाल लो तो बचा क्या? n यहाँ पर, और यहाँ पर से Ig बाहर चला गया तो -1. तो दिस Ig एंड Ig गेट्स कैंसिल, G अपॉन n माइनस 1. अगर मुझे ये वैल्यू का करंट भेजना है, दैट इज n इंटू Ig, देन शंट का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगा. ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंटू n. अगर यहाँ पर मुझे 3 टाइम्स Ig करना है तो यहाँ पर 3 माइनस 1 दैट इज़ 2. रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर अपॉन 2, जो भी रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का उसको ट्यूब. चलो आई विल हेल्प यू इन दिस. सपोज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज़ 100. ठीक है, 100 ओम, और n है 3. सपोज n इज़ 3, सो 3 माइनस 1 इज़ 2, सो दिस इज़ 50 ओम. मुझे शंट कितने का लगाना पड़ेगा? 50 ओम का, टू लेट द फ्लो ऑफ द करंट टू फ्लो 3 Ig करंट इन द सर्किट. समझ में आया कैसे शंट का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है? अगर मुझे ये अमाउंट का करंट भेजना है, दैट इज़ 3 इंटू Ig, तो मुझे शंट के लिए ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इस फॉर्मूले में लगा के यू कैन कैलकुलेट द शंट. ठीक है, मीन्स करंट का वैल्यू हमको पता होना चाहिए कि भाई ये इनपुट मुझे भेजना है, तो शंट रेजिस्टेंस जो मुझे लगाना है अपने गैल्वेनोमीटर में, that can be decided. ठीक है. Next is, if I is the total current, Is is the current through the shunt,
व्हाट विल बी द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर? अच्छा, अब फिर से आते हैं. यहाँ देखो, I is the current, total current. This current is going in the galvanometer and this current is coming towards the shunt. ठीक है. Now Ig is the current going in the galvanometer and Is is the current coming towards the shunt. What will be Ig? Can अच्छा किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं. चलो यहाँ पर Ig क्या है मुझे नहीं मालूम. How many points are coming towards this junction? Just I. And how many are leaving? These two are leaving. Ig क्या है पता नहीं, plus Is. So I minus Is will be पता नहीं क्या है Ig. So Ig will be I minus Is. So current through the galvanometer will be I minus Is. That is what? That is nothing but Ig. Now I have this equation. Here is this equation, that is equation 1. I have written that same equation 1 over here. Now I will substitute the value of Ig, that is G. What is Ig? I minus Is is equal to S and Is. Okay, then open the bracket. G into I minus G into Is is equal to S into Is. Then I will take this term on right hand side. So Gi is equal to S Is plus G Is common, so G plus S. Here I have G. Okay, now Is upon I, this I has come down, G, this G plus S. So this equation gives me the fraction of the total current through the shunt resistance. Shunt resistance में if this equation gives me the fraction of the current flowing towards the shunt resistance. ठीक है, अगर ये I मतलब I में से Is amount of current shunt में जाता है, तो this fraction tells me how much amount of current flows through the shunt. टोटल में से, टोटल करंट में से शंट में से कितना फ्लो हो रहा है अगर कैलकुलेट करना है तो वी विल यूज़ दिस इक्वेशन. ठीक है, हर चीज़ कैलकुलेट करने के लिए वी आर डिराइविंग इक्वेशंस. सो दिस इक्वेशन गिव्स अस द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट. टोटल करंट में से कितना फ्रैक्शन शंट में से जाने वाला है, टोटल करंट में से कितना फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट शंट में से ट्रैवल होने वाला है. सो वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस इक्वेशन. और यहाँ पर जो इक्वेशन एस का हम लोग ने डिराइव किया, दिस इक्वेशन हेल्प्स अस टू increase the range of current n times. Increase the range of current n times. जो भी नंबर डाल दो n की जगह पे तो हम रेंज, अपने करंट का रेंज बढ़ा सकते हैं. ठीक है, चलो. And from this I can calculate the shunt required. This helps me to calculate shunt required to increase the current n times. Increase the range of the current n times. ऐसे भी बोल सकते हैं, जितना ये शंट इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर n टाइम्स था, दिस शंट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द करंट n टाइम्स. 3 लेके हम लोग ने ये कैलकुलेट किया. सो दिस शंट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ 50 ओम का शंट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ करंट 3 टाइम्स. अंडरस्टूड?